تلنگانہ آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال پر سماعت پھر جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ عدالت میں حکومت نے مالی حالات پر حلف نامہ داخل کیا۔ عدالت نے حلف نامے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہائی کورٹ نے 19 اکتوبر کو سنوائی کے دوران ایم ڈی کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ اگلی سماعت 7 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ مینجمنٹ طرف سے گورنمنٹ سے کیا پیسے آنے کا ہے آج افیڈیوٹ ڈالا بولے تو یہ ہمارے مینجمنٹ گورنمنٹ طرف سے نہیں، مینجمنٹ طرف سے نہیں ڈالے، میونسپل آفیسرز طرف سے ڈالے، اتنا بنڈر افیڈیوٹ ڈالے جو ججوں خود بولے اب آرٹسٹ طرف سے ڈالے نہیں تو دوسرے ڈپارٹمنٹ طرف سے ڈالا بول کے 3 IAS آفیسر کئی کو آجو باجو بیٹھ کے یہ رپورٹ تیار کیا بول کے پوچھا، ایک رپورٹ بھی صحیح نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں دیا، پیسے نہیں ہے بول کے بول رہا، پیسے نہیں ہے باقی نہیں سب دے دیا بول رہے تو پلانا بابت کا پیسے آنے کا ہے نا۔ آنریبل منسٹر بولے 2019 1.5 مہینہ ہو رہا، 1.5 مہینے کے پہلے کیا بولے ہمارے کے گورنمنٹ سے پیسے آنے کا ہے 7,084 کروڑ 784 کروڑ اور میونسپل ایکٹ سے 1,492 کروڑ آنا بول کے 2013 تک کمبائنڈ APSRTC کا کمبائنڈ آندھرا پردیش میں 1,090 کروڑ 90 کروڑ آنے کا ہے، وہ پورا پیسہ تقریباً 3,500-4 ہزار کروڑ تک پیسے آنے کا ہے۔ یہ پیسے دے تو آرٹیسی لاس میں نہیں ہے، یہ ہونا بول کے آرٹیسی کی لاسز بتا کے آرٹیسی کے بیچنے کے لیے حکومت طے کر رہے، وہ آج ہمارے لوگوں کو بول رہے، کل بھی آج بھی ایک آدمی سوسائڈ کر لیا سادنا ڈپو والا اور ہاسپٹل کو لے کے آ رہا۔ مہربانی کر کے کوئی بھی سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں کرنا، اپن لڑیں گے نہیں کڑ کے لڑ کے اپن مینجمنٹ سے گورنمنٹ سے لڑیں گے بول کے بول رہا ہوں، کسی حال کسی وقت سوسائڈ کر لینا نہیں کر لینا بول کے بول رہا ہوں۔ فائنل جسٹس اپن ملتا، آج ججیں بھی سب کھلا بول دیا ہے مینجمنٹ کو تم لوگ ہونا بول کے غلطی کر رہے، یہ آرٹیسی ورکروں کو نقصان پہنچنے میں کر رہے، آرٹیسی پراپرٹی کو بیچنے کے لیے کر رہا بول کے ہم بول رہے، اس بات سے ورکر کوئی بھی ڈرنا نہیں، سوسائڈ تک نہیں جانا بول کے پوچھو۔ 100% اس میں ڈاؤٹ ہے کیا؟ بالکل رہے گا، کل پورا پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں، کل ہر ایک ڈپو میں پورا پولیٹیکل پارٹی کو لے کے ریلی نکالنے کا ہے۔ وہیں کریم نگر سے تعلق رکھنے والے آرٹیسی ملازم ناگنوری بابو کی 30 اکتوبر کو حیدرآباد میں احتجاجی جلسے کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی تھی۔ بابو کی لاش 3 دن سے رکھ کر احتجاج جاری ہے۔ کریم نگر میں JEC کی جانب سے بند کی کال دی گئی۔ بابو کی لاش کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے لے جاتے وقت بس ڈپو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ BJP لیڈر اور کریم نگر MP بنڈی سنجے اور ان کے ساتھیوں کو پولیس نے حراست میں لیا۔ اس موقع پر حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ دیکھے گئے۔ پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان ہاتھا پائی کے دوران ایک نوجوان کی حالت بھی بگڑ گئی۔ تلنگانہ JEC کے لیڈر بھی کریم نگر کے دورے پر ہیں۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت ہے، پولیس کے اعلیٰ عہدیدار موقع پر موجود ہیں۔ واضح ہے کہ کل بھی مرحوم ڈرائیور کے ساتھ لاش کے ساتھ ڈپو کے پاس احتجاج کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پولیس نے اس کو ناکام کر دیا تھا۔ اس موقع پر پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا۔ اسی طرح سے ملازمت چلے جانے کے خوف سے پریشان حال آرٹیسی کے ایک اور کنڈکٹر رویندر کو دل کا دورہ پڑ گیا، جس کے بعد انہیں مقامی دواخانے منتقل کیا گیا۔ حالات کشیدہ صورتحال اختیار کر جانے پر ڈاکٹرز نے انہیں حیدرآباد منتقل کیا۔ کنڈکٹر رویندر فی الوقت حیدرآباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ کنڈکٹر رویندر کا تعلق ہنمکنڈا ڈپو سے ہے۔ بینک پہ قرض لی گئی رقم کے لیے وقت پر قرض ادا نہ کرنے پر انہیں ایک نوٹس ملا اور بس اسی کے بعد سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تلنگانہ کابینہ کا اہم اجلاس کل سپہر 3 بجے وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ پر پرگتی بھون میں منعقد ہونا ہے۔ کابینہ اجلاس میں آرٹیسی ہڑتال اہم ایجنڈا رہے گا۔ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت پرائیویٹ خدمات کو کرائے پر حاصل کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے متبادل انتظامات کو یقینی بنانے کے منصوبے تیار کر رہی ہے۔ اجلاس میں ہڑتال کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، عوام کو ٹرانسپورٹ خدمات کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے، ساتھ ہی ہڑتال کے مسئلے پر ہائی کورٹ میں جاری مقدمے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
और वहीं तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव ने जिला यादाद्री भुंगेर के चौटुप्पल मंडल में एमएसएमई ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस पार्क से मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि तेलंगाना की आईटी पॉलिसी से मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। तेलंगाना में सनती इनकलाब आ गया है। केटीआर ने वाजे किया कि इंडस्ट्रियल पार्क से माहौलियात को कोई नुकसान नहीं होगा। పరిహారం ఇచ్చి వారి నుంచి వెంటనే భూమిని సేకరించి పార్కుకు అప్పజెప్పినట్టయితే తప్పకుండా మరిన్ని పరిశ్రమలు రావడానికి పర్యావరణ హితంగా పరిశ్రమలు నెలకొల్పుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుందనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। ఈ పార్క్ పేరులోనే గ్రీన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ అని పెట్టినాం। పర్యావరణ హితంగా పారిశ్రామికీకరణ జరగాలి, పరిశ్రమలు రావాల్సిందే, ఉద్యోగాలు రావాల్సిందే, జీడీపీ జీఎస్డీపీ పెరగవలసిందే, ఆదాయం పెంచి పేదలకు పంచాల్సిందే। కానీ పరిశ్రమల కోసం పర్యావరణాన్ని ఫలంగా పెట్టలేం। అందుకే గ్రీన్ ఇండస్ట్రీకి మాత్రమే ఈ పార్కులో ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తూ రెడ్ మరియు ఆరెంజ్ కేటగిరీ ఇండస్ట్రీలకు ఈ పార్కులో అవకాశం లేదనే మాటను కూడా నేను టిఫ్కు కానీ అదే రకంగా టీఎస్ఐఏసీకి కానీ గతంలోనే చెప్పడం జరిగింది। ఈ పార్కును 2000 ఎకరాలకు విస్తరించినప్పటికీ తప్పకుండా గ్రీన్ ఇండస్ట్రీకి మాత్రమే ఇందులో పెద్దపీట వేస్తామనే మాటను కూడా నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా ఉన్నాను। ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయిలా కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। నిన్ననే నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది। ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా లోకల్ అథారిటీ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది। అతి త్వరలో ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మహిళలకు, దళితులకు, గిరిజనులకు ఒక కోటా పెట్టి రిజర్వేషన్ పెట్టి వారికి ప్లాట్లను కూడా కేటాయిస్తున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। ఇదే పార్కులో ఒక 10 ఎకరాల స్థలంలో నైపుణ్య శిక్షణకు సంబంధించి స్థానిక పిల్లల కోసం ఒక స్కిల్లింగ్ సెంటర్ను కూడా ఏర్పాటు చేయండి। ఎవరికైతే నైపుణ్యం ఉన్నదో వారికి కొంత మెరుగులు అద్ది అటు పరిశ్రమలు ప్రారంభించే లోపల వారికి ఒక అవకాశం ఇచ్చే విధంగా। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी केटीआर ने अपने दौरे नई दिल्ली के मौके पर मरकजी वजीर कॉमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की थी। केटीआर ने जिला रंगारेड्डी में फार्मा सिटी के क़याम के लिए ताउन की अपील की। फार्मा सिटी में उन्होंने बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए फंड फराहम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा खम्मम में ग्रेनाइट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा किया। पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद केटीआर ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी खास मुलाकात की। इस दौरान तेलंगाना के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ट्राइबल जेएसी के वफ़द ने आज तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। उन्होंने कबायलियों के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बढ़ाए गए रिजर्वेशन के फीसद में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए गवर्नर की जानिब से मुदाखलत की अपील की है। 10% నుంచి 10% పెంచడం, అదే విధంగా దళితులకు 15 నుంచి 17% పెంచే విషయం మీద కూడా ఈ రోజు మేము గవర్నర్ గారిని నివేదించడం జరిగింది। రాజ్యాంగంలో క్లియర్ కట్ గా రిజర్వేషన్లు పెంచడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు, క్లియర్ కట్ గా చెప్పడం జరిగింది రాజ్యాంగం। అయినా కూడా ఇక్కడ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కావాలని చెప్పేసి అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి ఆ బిల్లును మైనార్టీ బిల్లుతో కలిపి కేంద్రానికి పంపించడం వల్ల జాప్యమై దాన్ని సాల్వ్ కాకుండా చేసినటువంటి కేసీఆర్ గారిని వెంటనే చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి గవర్నర్ గారిని కోరినాం। మంత్రిమండలి ఆమోదించిన తీర్మానాలని గవర్నర్ గారు ఏ విధంగా ఆమోదిస్తారో అదే రకంగా ట్రైబ్స్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో గిరిజనుల గురించి దాని యొక్క తీర్మానాలను కూడా గవర్నర్ గారు ఆమోదించాలని, ఆ తీర్మానాల్లో ఆమోదించడానికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టీఎస్సీని పిలవాలని గవర్నర్ గారిని మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది। हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफा नामी एक शख्स पर 3 तलाक का केस दर्ज हुआ है। मुस्तफा ने अपनी बीवी रुखसाना को 3 तलाक दे दिया। इसके बाद कुशाईगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया। मुतासरा खातून रुखसाना ने इंसाफ का मुतालबा किया। रुखसाना का कहना है कि पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार किया था, मकामी लोगों के दबाव के बाद ये केस दर्ज किया गया। रुखसाना ने मुस्तफा को कड़ी सजा देने की मांग की। 22 तारीख को मेरी शादी मुस्तफ़ा से हुई थी। जैसा शादी हो गई उसके बाद से वो लोग अपनी असलियत पे आ गए। 26 तारीख को जाके कंप्लेंट करी तो पुलिस वाले मेरा ये नहीं सुने। 2-3 दिन मैं गई, उल्ला नहीं सुने मेरी। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं को इंसाफ होना।
मैं वो पुलिस वालों से गुजारिश कर रही हूँ कि वो लोग मेरा इंसाफ करिए, आगे ऐसे लोगों को सज़ा मिले कि दोबारा कोई भी किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं खेले। टीबी का मर्ज तेलंगाना के अलावा मुल्क में तेजी से पांव पसार रहा है। टीबी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर हैदराबाद में खास इजलास का इनेकाद किया गया। यूनियन वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस का 50वां इजलास हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। पहली मरतबा ये इजलास हैदराबाद में मुनक़िद किया गया। इजलास के दौरान मुल्क में बढ़ते टीबी के अमराज पर तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन ने टीबी से बचने और एहतियाती तदाबीर पर अपने अपने ख्यालात पेश किए। इसके अलावा अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करने की यहाँ बात कही गई। द यूनियन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सचदेव ने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान में टीबी का मर्ज बढ़ता जा रहा है। अपने आशिक के दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही मां का कत्ल करने वाली एक लड़की, उसके दोस्त और आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंद दिन पहले हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर के हुदूद में कीर्ति ने अपने आशिक बालरेड्डी और उसके दोस्त शशि कुमार के साथ मिलकर अपनी ही मां का कत्ल किया था। 3 दिनों तक लाश को घर में रखने के बाद लाश को रामन्नापेट रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। रचकंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश भागवत ने कहा कि तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। के पहले भी अपने खुद के मदर को स्लीपिंग पिल देके मारने की भी कीर्ति ने और उसका फ्रेंड शशि कुमार इन दोनों ने कोशिश की थी। पिछले 2.5 साल से एक कीर्ति का एक बालरेड्डी नाम के लड़के से प्यार था। शशि कुमार ने अपनी फ्रेंडशिप कीर्ति के साथ बढ़ा ली और फाइनली अपने कीर्ति के माँ को कत्ल करने में कीर्ति और शशि कुमार वो कामयाब हुए। शशि कुमार के खिलाफ एक्सटॉर्शन, पोक्सो और रेप का केस, और जो बालरेड्डी करके कीर्ति का जो फ्रेंड है उसके खिलाफ में पोक्सो, रेप और अबॉर्शन, ये सब केसेस अभी नमूद हुए। उसमें इन सबको हमने अरेस्ट किया है। उसके साथ साथ हम पुलिस रिमांड पे लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। आज आंध्र प्रदेश का यौम तासीस मनाया जा रहा है। विजयवाड़ा के म्यूनिसिपल स्टेडियम में जारी खास तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला शरीक हैं। कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश यौम तासीस तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला परिषद कन्वेंशन हॉल में मुनक़दा इस तकरीब में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन पी वेंकटरमैया ने शिरकत की। इसके अलावा ज्वाइंट कलेक्टर, एसपी और मुख्तलिफ महकमों के उहदेदारों ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। अपने खिताब के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत समाज के हर तबके की तरक्की के लिए संजीदा है। और वहीं करनूल में भी वाईएसआर पार्टी के दफ्तर में आंध्र प्रदेश का यौम तासीस मनाया गया। करनूल रुकने असेंबली एम ए हफीज खान ने पी श्री रामलू को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर तेलुगु जबान बोलने वाले आंध्र प्रदेश का यौम तासीस मनाते हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में रियासत तेजी से तरक्की की मंजिलें तय करेगी। मद्रास स्टेट से हटकर आंध्र अलग बनना बोलकर हमारे लोगों के हक के लिए, हुकूक के लिए निराहार दीक्षा करे हैं, तो उनकी याद में आज सारे स्टेट में, और ना सिर्फ सारे स्टेट में, जहाँ जहाँ तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पर हर जगह पे जो है उनको आज याद कर रहे हैं। आज उनकी कुर्बानी की वजह से एक अलग आइडेंटिटी के साथ अपने स्टेट में अपन जो है डेवलप कर लेते हुए सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जी रहे हैं। तो उस चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट और हमारे सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब भी पूरे स्टेट वाइड वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ऑफिसेस में भी और गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी हर जगह पे उनकी याद में जो है प्रोग्राम्स ब्रिटिशर्स के साथ आज़ाद हुआ, उसी तरीके से हमारे हुकूक के लिए, आंध्रा के लोगों के हुकूक के लिए लड़े पोटी श्री रामलू साहब। इसीलिए जो है आज हम लोग ये स्टेट में इस तरीके से एंजॉय कर सक रहे हैं।
YSR आरोग्य श्री स्कीम में हुकूमत ने तोसी की है। अब पड़ोसी रियासतों चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी आरोग्य श्री स्कीम के तहत इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने स्कीम की तोसी से मुतल्लिक़ कैंप ऑफिस में पोस्ट जारी किया। अब आंध्र प्रदेश के मरीजों को चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने पड़ोसी रियासतों के डॉक्टर से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सिलसिले में बातचीत की और रियासत के मरीजों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मशवरा दिया। करनूल के इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में आज YSR कंटी वेलगू प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर, रुकने असेंबली हफीज खान, रुकने पार्लियामेंट TG वेंकटेश और दीगर ने शिरकत की। कंटी वेलगू के पहले मरहले में तलबा की आंखों की जांच की गई। दूसरे मरहले में कमजोर बीनाई वाले तलबा को चश्मा फराहम किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनकी आंखों का ऑपरेशन भी किया जाएगा। వాళ్ళకు తెలియని వయసులో కంటి చూపు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి అది గమనించి వాళ్లకు పరీక్షలు చేశారు. ఫేజ్ 1 అయిపోయింది. ఫేజ్ 2లో ఇంకా ఇప్పుడు అద్దాలు ఇవ్వడమా లేదంటే ఆపరేషన్స్ చేయడమా అనేది జరుగుతుంది. దాదాపు మన జిల్లాలోనే 6 లక్షల మందికి పరీక్షలు చేశారు. 39,000 మందికి ఈ ఫేజ్ 2లో మళ్ళీ అదనపు పరీక్షలు చేయడం జరుగుతుంది. చేసి వాళ్ళకందరూ కూడా అద్దాలు ఇవ్వడానికి అద్దాలు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి పరిస్థితి కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్కూల్ పిల్లల తరఫున మేమందరం కూడా కృతజ్ఞత। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी को CBI कोर्ट ने झटका दिया है। अदालत में शख्सी हाजिरी से राहत देने की अपील करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। CBI कोर्ट ने समाअत के दौरान अदालत में उनको हाजिर होने का हुक्म दिया है। जगनमोहन रेड्डी के वकील ने अदालत को बताया कि जगनमोहन रेड्डी फिलवक्त वज़ीर आला हैं। अगर वो एक दिन के लिए अदालत में हाजिर होते हैं तो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पर ही 60 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश पहले ही माली खसारे से दो चार है। वो नहीं चाहते कि अवामी दौलत का बेदरीग इस्तेमाल किया जाए। उधर अदालत का कहना है कि अगर वो अदालत में हाजिर नहीं होंगे तो गवाहों को हिरासा कर सकते हैं, इसीलिए अदालत ने उन्हें शख्सी तौर पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। उधर जगनमोहन रेड्डी ने CBI अदालत के फैसले से राहत देने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। करनूल बीजेपी लीडर डॉक्टर पार्थसारथी ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता हुकूमत और मौजूदा जगन हुकूमत ने इलाके रायलसीमा के अवाम के साथ नाइंसाफी की है। हाईकोर्ट और सदर मुकाम के लिए वकला की जानिब से गुज़िश्ता 50 दिनों से एहतजाज करने के बावजूद वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। बीजेपी लीडर ने हुकूमत से करनूल में हाईकोर्ट कायम करने और करनूल को AP का सदर मुकाम बनाने का ऐलान करने का भी मुतालबा किया। మీరు వాగ్దానం చేసినటువంటి విషయాలని ఎందుకు సమాధానం చెప్పరు అని ఈ ఎమ్మెల్యేలని ఎంపీలని సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బాధ్యత ఉంది. ఆయన కూడా రాయలసీమ నుంచి గెలిచినటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యే, తర్వాతనే చీఫ్ మినిస్టర్. ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా రాయలసీమకు చెందినవాడే. వీళ్ళిద్దరూ కూడా రాయలసీమలో పుట్టి పెరిగి రాయలసీమకు న్యాయం చేస్తామని సీఎంలైన వాళ్ళు రాయలసీమను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి जमीयतुल उलमा हिंद करनूल के दफ्तर में दीनी तालीमी बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मौलाना हफीज पीर शब्बीर अहमद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि दीन की बुनियादी तालीमात से बच्चों और बड़ों को वाकिफ करवाना दीनी तालीम बोर्ड जमीयतुल उलमा हिंद का अहम मकसद है। दारुल उलूम ताहिर गुलशन करनूल में ज़ियारत आसार मुबारक और जश्न ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद अमल में लाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी की निगरानी डॉक्टर सैयद शाह इस्माइल पीर हुसैनी ने की। इस जलसे में मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसैनी कादरी शर्फी, मौलाना मुफ्ती सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल मुज़ हुसैनी रिजवी कादरी, मौलाना सैयद कलीमुल्लाह और दीगर उलमा ने खिताब किया। इस मौके पर महफिल मीलाद शरीफ, अताए खिलाफत और दस्तारबंदी भी की गई। तो सजदे के लिए जमीन भी दिया है, हाथ दिया है तो खर्च करने के लिए माल भी दिया है।
पैर दिया है तो चलने जाने के लिए मस्जिद भी दिया है। तो गोया हमारा जिस्म खुद ये बतला रहा है कि तुम अपने सर कहाँ झुकाओगे, हाथ से कौन सा काम करोगे, पैर किधर ले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले अल्लाह के हक को ही अदा करना है। जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो पहले नबी भी है, इनकी नबूवत पर ईमान, ये पहले नबी है, इंसानों का आगाज इन्हीं से हुआ। लेकिन उस मंजर को भी याद रखिए जो दुनिया में उतरने से पहले ऐलान हो रहा है, मैं आदम को दुनिया के लिए पैदा कर रहा हूं ताकि मेरी खिलाफत, मेरी मर्जी दुनिया में बताए, उस शख्स को खुशहाली अता फरमाए, उसके चेहरे को तरोताजा रखे, जो मेरी बातों को सुने, उनको महफूज रखे और उनको दूसरों तक पहुंचाए। रोज़े क़ियामत के आया जिस तरह है दाइमन अहवाल उम्मत के आया, जैसा हमेशा उम्मत के अहवाल मुस्तफा पर आया है, वैसे ही क़ियामत तक के वाक़या मुस्तफा पर आया है, दिलों की कैफियतें मुस्तफा पर आया। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा 10 नवंबर को आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। एपी बीजेपी सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने जेपी नड्डा के दौरे पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों पर पार्टी लीडरों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा 25,000 पोलिंग बूथ्स के बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। उन्होंने इस मौके पर जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी जातीय वर्किंग प्रेसिडेंट నడ్డా గారు బూత్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ని, యాక్టివ్ మెంబర్స్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడటం కోసం 10వ తారీఖు విజయవాడ వస్తున్నారు. ఈ 4.5 సంవత్సరాలు భారతీయ జనతా పార్టీ రోడ్ మ్యాప్ నిర్దేశించడం కోసం, కార్యకర్తలకి దశ దిశ రూపకల్పన చేయటం కోసం ఆయన కార్యకర్తలతో మాట్లాడతారు. తర్వాత స్టేట్ ఆఫీస్ బ్యారర్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది. 10వ తారీఖు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల నుండి కూడా బూత్ కమిటీ సభ్యులు, యాక్టివ్ మెంబర్సు, ఆఫీస్ బ్యారర్సు, మోర్చాలు, సెల్సు అందరూ కూడా కార్యకర్తలంతా ఆ రోజు మీటింగ్కి పాల్గొనాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఇసుక కొరత వల్ల ఈ ప్రభుత్వం సృష్టించినటువంటి ఇసుక కొరత వల్ల భవన నిర్మాణ కార్మికులు, దానికి అనుబంధ వ్యవస్థల్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఆకలితో అలమటిస్తూ చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అది సమస్యలాగా కనబడతలేదు అని అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనేటువంటి దానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనం ఇంకొకటి లేదు. ప్రతిపక్షాలకు ఇది సమస్యలా కనపడుతుంది కానీ ప్రభుత్వానికి అది సమస్యలాగా కనపడతలేదట. మరి మంత్రులు మాట్లాడుతుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, చాలా బాధ్యతారాహిత్యంగా కూడా ఉంది. ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇది ప్రభుత్వం సృష్టించినటువంటి సమస్య. పూర్తిగా ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము కొత్త పాలసీకి ఒక ముహూర్తం పెట్టి ఈ కొరత ప్రభుత్వమే సృష్టించింది, ఈ కొరతకి ప్రభుత్వం 100% బాధ్యత వహించాలి. ప్రభుత్వ సృష్టి వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఈ కొరత వల్ల ఇబ్బంది పడినటువంటి లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకి ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఇసుక పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో వచ్చే వరకు కూడా నెలకి 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేటువంటిది డిమాండ్ చేశాం. బాధ్యత కలిగినటువంటి ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి మీరు ఆ విషయం ఏం చేస్తున్నారో మాట్లాడండి.